So guys, welcome again to your own channel Biology Circle. Guys, today we are back again with second part of chapter human reproduction with interesting facts and topics. So guys, in previous video, without wasting any time, let's start the topic. So guys, in previous video we discussed male human, that is male reproductive structure, female reproductive structure detail one, that is any reproductive structure if that is male or female comprises of three things: primary sex organs, secondary sex organ, and external genitalia. In both we discussed the detail one of every part of human, that is male and female reproductive structure. Now guys, let's move further. In this video we talk about very interesting facts, that is gametogenesis, means formation of gametes separately in males and in females. Then we discuss one important cycle, that is menstrual cycle in females, and after that we discuss about fertilization and amazing with end our video with amazing what it is needs MCQ. So let's guys start the video. So guys, gametogenesis. Guys, what is gametogenesis? We all know gametogenesis. Genesis means formation, and gametes we all know that is separately of male and female. So gametogenesis is the formation of gametes. So I write it here: formation of gametes. Now we discuss separately gametogenesis in female and in male. So let's start the male first. So separate name of gametogenesis in male, that is spermatogenesis. So I write it here: spermatogenesis. So spermatogenesis, or we can say gametogenesis in male. What is spermatogenesis? Simply मेल में गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्माटोजेनेसिस. ठीक है, तो थोड़ी वेल डिफाइंड डेफिनेशन लिखते हैं. So spermatogenesis, it is the process of formation of spermatozoa from spermatogonia. So guys, the well defined definition of spermatogenesis, that is the formation of spermatozoa from spermatogonia. Now what is this spermatozoa and spermatogonia? Spermatozoa we can say sperm, and spermatogonia is कह सकते हैं ना अपन जैसे पिछले वीडियोस में देखना, अपन ने हर एक किसी भी स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, किसी भी फॉर्मेशन की अपन बात करते हैं. ठीक है, तो अब जैसे अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा था, अपन डायरेक्ट पोलन ग्रेन नहीं बनते, माइक्रोस्पोर डायरेक्ट नहीं बनते, माइक्रोस्पोर बनते किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो सिमिलरली वही है, स्पर्माटोजोआ बनते किससे? स्पर्माटोगोनिया से. ठीक है, so spermatogenesis is the process of formation of spermatozoa from spermatogonia. Now let's move further. स्पर्माटोजेनेसिस अपन पूरी साइकिल देखते हैं. ठीक है, इसका एक डायग्राम देखते हैं सबसे पहले, और उससे भी पहले मेनली क्वेश्चन आता है, ऑन विच स्टेज स्पर्माटोजेनेसिस स्टार्ट. मींस स्पर्माटोजेनेसिस ह्यूमंस में, मेल्स में कौन से स्टेज में स्टार्ट होती है? दैट इज एट प्यूबर्टी. So guys, I start it here again. Important one: spermatogenesis starts in male at puberty. Now सबसे पहले स्पर्माटोजेनेसिस साइकिल देखते हैं, उससे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं. तो गाइस, सबसे पहले स्पर्माटोजेनेसिस की साइकिल स्टार्ट करने से पहले अपन इसका स्ट्रक्चर से समझते हैं. ठीक है गाइस, अपन ने स्टार्ट किया स्पर्माटोगोनिया से. डेफिनेशन से पता चलता है अपन ने स्टार्ट किया स्पर्माटोगोनिया. तो आई राइट इट हियर: स्पर्माटोगोनिया. ठीक है गाइस, कब चालू हुआ था? एट एज ऑफ प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी में चालू हुआ था स्पर्माटोगोनिया. अब
कौन सा डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन, दैट इज माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। एक स्पर्माटोजोआ माइटोटिकली डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हुआ, एक स्पर्माटोजोआ, एक स्पर्माटोजोआ माइटोटिकली डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये दो सिमिलरली अगेन डिवाइड होके मियोटिकली, फर्स्ट ये वाला तो डिवीजन माइटोटिकली था, आई राइट इट हियर एम, माइटोटिकली, माइटोटिकली। उसके बाद जो डिवीजन होगा वो होगा मियोटिकली, उसके बाद जो डिवीजन होगा वो होगा मियोटिकली। तो ये मियोटिकली डिवाइड हुए सेपरेटली, ये दो में, ये दो में। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर आए अपने पास, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, दैट इज प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, आई राइट इट हियर प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्माटो, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। ज्यादा याद रखने की जरूरत, अपन लोगों को केवल नाम याद रखने, बाकी पूरा प्रोसेस डिवीजन पे ऊपर बेस्ड है। देखा स्पर्माटोगोनिया डिवीजन हुआ, माइटोटिकली हुआ, उसके बाद सारा मियोटिकली डिवीजन है। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट अगेन मियोटिक डिवीजन होगा, अगेन मियोटिक डिवीजन होगा, आई राइट इट हियर मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। ये क्या बनेंगे, ये क्या है, प्राइमरी तो बन गए, अगेन डिवाइड हुआ तो कौन सा बनेगा, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट गाइस। अब एक मेन फैक्ट, स्पर्माटोगोनिया में क्रोमोसोम्स कितने थे, स्पर्माटोगोनिया से जब अपन ने स्टार्ट किया था तो क्रोमोसोम्स कितने थे, there are 46 chromosomes as we know in our body, 46 chromosomes, 46 chromosomes, 46 chromosomes। तो स्पर्माटोगोनिया में अपन ने स्टार्ट किया था जब 46 क्रोमोसोम्स थे, तो ये तो माइटोटिकली डिवीजन हुआ। उसके बाद प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स हुए, और उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स हुए, तो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स के पास क्रोमोसोम कितने आएंगे, हाफ, दैट इज 23। सो आई राइट इट हियर 23, दैट इज secondary spermatocytes have 23 chromosome, have 23 chromosome. So mainly question come to confuse the student that the number of chromosome in spermatogonia and spermatocyte. So in spermatogonia 46, in spermatocytes 23. Now this secondary spermatocyte again divide to form this fourth structure, that is spermatids, that is spermatids, that is spermatids. Write it here, spermatids, 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 spermatids. So guys, this is the whole cycle of spermatogenesis और gamete formation in male. तो सबसे पहले अच्छे से समझते हैं वापस, मेल में अपन ने स्टार्ट किया था स्पर्माटोगोनिया, एक तरह से कह सकते हैं अगर सेक्सुअल से कन्वर्ट करें तो एक तरह से बड़ा सेल, ठीक है। आप डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से कंपेयर करते जाओ, उससे कंपेयर करते जाओ। पोलर के किससे हुआ था, पोलर मदर सेल से हुआ था, ठीक है। उसमें वो जो प्रोसेस मैंने बताई थी, सिमिलरली ह्यूमंस में आप इसमें ओवरऑल डिवीजन ही तो हो रहा है ना। स्पर्माटोगोनिया से अपन ने स्टार्ट किया, माइटोटिकली डिवाइड हुआ दो में, केवल एक ही बात, स्टार्टिंग में माइटोटिकली डिवाइड होगा, उसके बाद ये मियोटिकली डिवाइड होगा, उसके बाद मियोटिकली डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बनाए, छोटे यूनिट प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट अगेन मियोटिकली डिवीजन होके सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बनाए, जो कि क्रोमोसोम नंबर हाफ थे, दैट इज 23, एंड सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट अगेन डिवाइड होके स्पर्माटिड बना दिया, दैट इज स्पर्माटिड, दैट इज स्पर्माटिड, ये वाला स्ट्रक्चर स्पर्माटिड। तो गाइस फोर्थ स्पर्माटिड, कितने स्पर्माटिड बनाए, फोर्थ स्पर्माटिड, फोर्थ स्पर्माटिड। तो अब अपन ने साइकिल समझ ली, अब इसको नाम दे देते हैं। अपन ने साइकिल समझी, साइकिल पूरी समझी, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इसको स्टेप्स दे देते हैं। तो यहाँ पे साइकिल, अपन अब स्टेज दे देते हैं, साइकिल अब अपन स्टेज दे देते हैं, ठीक है गाइस। दैट इज फर्स्ट कौन सी स्टेज, फर्स्ट थी मल्टीप्लिकेशन स्टेज, दैट इज साइकिल के अपन नाम देते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेज। इसके बाद अपन एक एक साइकिल को समझते जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन स्टेज, अपनी मैच्योरेशन और ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ। थर्ड इज मैच्योरेशन स्टेज,
Fourth is differentiation. Fourth is differentiation. Fourth is differentiation stage. Differentiation stage. Differentiation stage. So guys, अपन ने पूरी साइकिल समझ ली अच्छे से, पूरी अपन ने साइकिल समझ ली। अब केवल इन नाम को यहाँ पे फिट करना है, अपन ने इन स्टेजेस को यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। इन स्टेजेस में एक्सप्लेनेशन वही होगा जो अपन ने ओवरऑल साइकिल समझी है। मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वी स्टार्ट विद स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किया था जिसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था। अब नाम से डिनोट करो यार, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। सो आई राइट इट हियर, मल्टीप्लिकेशन फेज ये वाला। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज पे आते हैं। ग्रोथ फेज क्या, यहाँ तक तो हो गया। अब ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। ग्रोथ फेज में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया हो डिवाइड हो रहा है, माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, तो अभी ग्रोथ होगा इनका। नाम से डिनोट करो, उसी में वही लिखा हुआ आएगा जो अपन नाम से। मल्टीप्लिकेशन फेज में अपन ने क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहा है। ग्रोथ फेज में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो होगा वो साइज में इंक्रीज करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, ताकि वो साइज में इंक्रीज करेगा ताकि वो डिवाइड होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना पाए, ताकि वो डिवाइड होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना पाए। तो ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया स्टार्ट increasing his size और grow, ठीक है गाइस। मैच्योरेशन स्टेज, मैच्योरेशन स्टेज, व्हाट इज मैच्योरेशन स्टेज, ठीक है गाइस। तो ग्रोथ स्टेज, आपको ग्रोथ स्टेज समझ में आ गया। अपन ने मल्टीप्लिकेशन स्टेज में स्पर्मेटोगोनिया स्टार्ट माइटोटिकली टू डिवाइड, ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड हुआ। ग्रोथ स्टेज में स्पर्मेटोगोनिया ग्रो, इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अपन ने फर्स्ट स्टेज में आया। सेकंड स्टेज क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया उसने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकंड स्पर्मेटोसाइट। थर्ड स्टेज में आते हैं, आई राइट इट हियर, थर्ड स्टेज मैच्योरेशन फेज। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, ठीक है। उसके बाद ये मैच्योर हुआ, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स मैच्योर हुए, मियोटिकली डिवाइड होकर मैच्योर हुए। जो स्ट्रक्चर क्या बनाया, स्पर्मेटिड्स, ये चार गोल है स्पर्मेटिड्स। और मैच्योरेशन स्टेज लिखूं, या मैं ब्रैकेट में, या मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूं, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है गाइस। तो ये था मैच्योरेशन स्टेज। और फाइनल जो स्टेज आता है वो आता है डिफरेंशिएशन स्टेज। फाइनल जो स्टेज आता है वो आता है डिफरेंशिएशन स्टेज। इसमें क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड्स जो है, स्पर्मेटिड्स बना रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स बना रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। ये चार स्पर्मेटिड्स है। अपना फाइनल स्ट्रक्चर स्पर्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ये चार स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है गाइस। सो डिफरेंशिएशन फेज, फाइनल स्पर्मेटिड्स डेवलप हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में और स्पर्म में, ठीक है गाइस। स्पर्मेटिड्स डेवलप हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ। सो द प्रोसेस गाइस, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग spermatozoa to spermatids is called spermiogenesis. Spermiogenesis, ठीक है गाइस, spermiogenesis। तो यहाँ पे अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल कंप्लीट की, स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल कंप्लीट की, ठीक है गाइस। तो अपने अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे oogenesis। So guys, human reproduction. In previous lesson we discussed about spermatogenesis, means male cycle is complete, male gamete formation is complete. Now we talked about female one. So female, that is the formation of gametes. The formation of gametes in female is known as oogenesis. oogenesis, ठीक है गाइस। oogenesis में स्टार्ट करेंगे सिमिलरली, वो तीन स्टेप्स लेके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड वन ग्रोथ फेज,
growth phase, and third one guys, that is differentiation phase. That is differentiation phase. Differentiation phase. That is differentiation phase. So guys, these three main we can say steps we discuss in oogenesis. Now guys, multiplication phase. As we know, let's understand them with again same cycle. Oogonia. ठीक है गाइस, अपन ने स्टार्ट किया oogonia से, स्टार्ट किया राइट है oogonia से स्टार्ट किया गाइस, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट मैंने बताया था। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, बट oogenesis स्टार्ट होगी एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये एक मेन डिफरेंस है between spermatogenesis and oogenesis. So I again started here and write embryonic stage. Embryonic stage means oogenesis start होती है गाइस embryonic stage पे। अब oogonia से स्टार्ट किया अपन ने। oogonia में meiotic division हुआ, ठीक है। अब ये oogonia कहाँ पर है? ओवरी में प्रेजेंट है। oogonia कहाँ पर प्रेजेंट है? ओवरी में प्रेजेंट है गाइस, ठीक है। oogonia meiotic डिवीजन हुआ, दो सेल्स में डिवाइड हुआ, अगेन दोनों सेल्स सेपरेटली सेल्स में डिवाइड हुए, जिन्हें अपन बोलेंगे प्राइमरी oocytes. लाइक इन स्पर्मेटोजेनेसिस वी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हियर वी से प्राइमरी oocytes, ठीक है गाइस। प्राइमरी oocytes डेवलप होगा सेकेंडरी oocytes में, डिवीजन के बाद बनेगा सेकेंडरी oocytes में। अब गाइस इसमें एक डिफरेंस आ गया। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन ने देखा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे, पर फीमेल में भी प्राइमरी oocytes सेकेंडरी oocytes बन रहे हैं, पर इसके साथ एक पोलर बॉडी भी रिलीज हो रही है। लाइक अगर प्राइमरी oocytes है तो इसके साथ ये पोलर बॉडी, दैट इज नोन एज फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये सेकेंडरी oocyte, दैट इज सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, दैट इज गाइस सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो अपन ने oogonia से स्टार्ट किया था। लाइक इन मेल वी स्टार्ट फ्रॉम spermatogonia, here we start from oogonia. Similarly meiotic division take place, primary oocyte form, secondary oocyte form with first polar body, second polar body, ठीक है गाइस। फाइनली अपने पास ओवम दैट इज ओव्यूल्स अपन को मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो अब इन तीनों फेज को अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस के सिमिलर वे से इन तीनों फेज को यहाँ पे अपन को ऐड करना है, मीन इन तीनों फेज को यहाँ पे नाम दे देना है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करते हैं, सेम जो अपन ने डिस्कस किया होगा वो इसमें लगाना है। मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन फेज में वी स्टार्ट फ्रॉम oogonia से स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है। जो कहाँ पर है? इन ओवरी, oogonia से स्टार्ट किया, ओवरी में प्रेजेंट है। अब कितने oogonia है? मिलियंस ऑफ oogonia होंगे, ये है मिलियंस ऑफ oogonia होंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट गाइस, started here again, no more oogonia are added or formed after birth. The important note guys, no more oogonia are added or formed after birth means बेबी में डेवलप होने के बाद, किसी भी बेबी का बर्थ होने के बाद oogonia आगे डेवलप नहीं हो पाते, मीन्स नो मोर oogonia डेवलप और वी कैन से फॉर्म्ड आफ्टर बेबी बर्थ, ठीक है गाइस। इंपॉर्टेंट नोट है।
सो अगेन बैक विद मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में oogonia से अपन ने स्टार्ट किया था, मिलियंस ऑफ oogonia, ठीक है, ओवरी में फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन होगा oogonia में, मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। oogonia में मियोटिक डिवीजन होके क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। oogonia में मियोटिक डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा गाइस। तो ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट बात है ग्रोथ फेज में, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप होगा oogonia, ठीक है गाइस। सो जो फॉलिकल होगा टर्शरी फॉलिकल हो, साइज में ग्रो करने लगेगा, साइज में ग्रो करने लगेगा। ग्रोथ फेज से पता चलता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में वीडियो को रिपीट करो, वापस बैक जाओ। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बताया था मैंने, ग्रोथ फेज में सेल की साइज इंक्रीज होती है, ग्रो होता है, डेवलप होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, टर्शरी फॉलिकल जो होगा वो डेवलप होगा, साइज में ग्रो होगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना ग्रोथ फेज का गाइस, ग्रोथ फेज का हुआ। और फाइनली डिफरेंशिएशन फेज का हुआ, ठीक है। डिफरेंशिएशन फेज दैट इज जो टर्शरी फॉलिकल होगा, टर्शरी फॉलिकल ये वाला, ये जो टर्शरी फॉलिकल होगा वो डिवाइड होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विद फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विद सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। मींस डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है। तो ये अपनी oogenesis साइकिल। अब मेन अपन बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस की, oogenesis में डिफरेंस की, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस की बात करते रहे। एक डिफरेंस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जबकि oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है। मेजर डिफरेंस जो सिंपल सा डिफरेंस है वो है ये मेल, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन मेल, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन फीमेल, ठीक है। दो डिफरेंस, एक और डिफरेंस कर लेते हैं। वीडियो को रिपीट करो, ठीक है, वीडियो को रिपीट करो। स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने फेज थे, स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 ही फेज थे क्या, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 फेज थे, एक फेज ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के बीच में एक फेज ऐड हो गया था। मींस स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने फेज थे, 4 फेज थे, जबकि oogenesis में कितने फेज है, 3 फेज ही। oogenesis में कितने फेज है, 3 फेज ही है। तो ये डिफरेंस हुआ, मेन डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का मेन डिफरेंस हुआ गाइस। सो अपन ने यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कंप्लीट किया, ठीक है गाइस। सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन प्लीज, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। सो गाइस अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट किया, oogenesis कंप्लीट किया। अब मैंने एक खाली बोर्ड, अपन आगे चलने से पहले तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के रिलेटेड क्वेश्चन है, पर मैंने इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ में नहीं बताया, ठीक है। मैंने इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ में इंक्लूड नहीं किया है, मैंने इसको एक पूरी ब्लैंक स्लाइड में इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस क्या है, एंड इन ब्रैकेट आई राइट हार्मोनल control of spermatogenesis, hormonal control of spermatogenesis. Spermatogenesis we discuss process of formation of gametes in male. अब स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे ही हो जाता है, मीन्स कि टाइम आया और हो गया। हार्मोनल कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, 3 मार्क्स से कम में तो बनेगा नहीं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस को कोई तो ऑर्डर देता होगा कि हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस करो, कोई तो ऑर्डर देता होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ ग्लैंड नेम हाइपोथैलेमस, ग्लैंड नेम हाइपोथैलेमस। We know what is hypothalamus. We all know in also discussed in chapter of class, chapter control coordination of class 10. Now guys, hypothalamus release hormone that is GnRH. That is gonadotropin releasing hormone. Now this hypothalamus release GnRH. अब GnRH क्या करता है, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी से
GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी से मीन GnRH निकला हाइपोथैलेमस। GnRH ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन को रिलीज कराया। इसने क्या किया, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी इसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन को रिलीज कराया, दैट इज FSH and second one is LH and FSH. Now what is LH and FSH? We know LH luteinizing hormone, FSH follicle stimulating hormone. ठीक है गाइस, सो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज किया, GnRH ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश दे दिया, मतलब फोर्स कर दिया कि ये दो हार्मोन रिलीज कर दो। अब इन दो हार्मोन का काम क्या, FSH acts on Sertoli cells. Now what is Sertoli cells? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था Sertoli cells, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जब अच्छे से डिस्कस किया तो मैंने बताया था Sertoli cells are lying outside seminiferous tubule के। So FSH acts on Sertoli cells and help in the process that is spermiogenesis and help in spermiogenesis. And now guys, what is spermiogenesis? मैंने spermatogenesis में बताया था what is spermiogenesis. So FSH acts on Sertoli cells and helps in spermiogenesis. Now this LH acts on Sertoli cells हो गया, कौन सा सेल बचा, acts on Leydig cells, ठीक है गाइस, और ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। और LH acts on Leydig cell which stimulate the process that is spermatogenesis or spermiogenesis. तो गाइस ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। मींस स्पर्माटोजेनेसिस जब साइकिल होती है तो इसमें से कौन कौन से हार्मोन्स का क्या क्या रोल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस का GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने एंटीरियर पिट्यूटरी को फोर्स किया, दो हार्मोन रिलीज कराए, ट्रिगर एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज द टू हार्मोन दैट इज FSH and LH. FSH follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone. This FSH acts on Sertoli cells and helps in spermiogenesis. This LH acts on Leydig cells and stimulates the process. So this is hormonal control of spermatogenesis. Now guys we start a very different cycle, that is अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, रिप्रोडक्टिव पार्ट का, दैट इज मेल फीमेल। अब स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो उसके बाद नेसेसरी क्या थी, स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन, तो अपन ने गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ लिया, स्पर्माटोजेनेसिस पढ़ लिया, ठीक है, oogenesis पढ़ लिया, मतलब फॉर्मेशन देख लिया गैमेट का, ठीक है। अब अपन एक फॉर्मेशन, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। बट फर्टिलाइजेशन से पहले अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल देखते हैं, दैट इज इन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गाइस अपन फीमेल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल देखते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कुछ टर्म्स उसके डिस्कस करेंगे व्हिच आर रिलेटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, menstrual cycle. Now menstrual cycle अगर डेफिनेशन, सबसे पहले चलो एक काम करते हैं डेफिनेशन। It is the series of rhythmic changes in females primates, ठीक है। in bracket I write monkey, apes, human, ठीक है गाइस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, पहली बात तो अभी ये कि केवल ये मैंने ब्रैकेट से आपको पता चल गया, और केवल ये ह्यूमंस में तो नहीं होती, ठीक है, ह्यूमंस में तो केवल ये होती नहीं,
ठीक है। मंकी में भी सेम साइकिल होती है और एप्स में भी सेम साइकिल होते हैं। तो ये तीन ऑर्गेनिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ह्यूमन, फीमेल, एप्स एंड मंकी। ठीक है गाइस। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने डेफिनेशन तो लिख ली है, द सीरीज ऑफ राइथमिक चेंजेस इन ह्यूमन फीमेल्स। मतलब क्या होता है, एक एज पे फीमेल्स में, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन फीमेल्स में एक एज पे क्या होता है, एक सीरीज ऑफ चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जैसे जैसे एज चलती है ना, उनमें एक सीरीज ऑफ चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। उस सीरीज ऑफ चेंजेस को अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मतलब एक साइकिल जनरेट होना चालू हो जाती है, इसमें सीरीज ऑफ चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जब ह्यूमन फीमेल्स में जब ह्यूमन फीमेल्स में जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, when first menstrual cycle take place, when first menstruation take place is when जब ह्यूमन फीमेल में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल और पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है ना, उस टर्म को अपन बोलते हैं मिनार। टर्म को गाइस अपन बोलते हैं मिनार। साथ ही साथ ये मार्क करते जाएंगे आप और लिखते भी जाएंगे। टर्म्स को अपन बोलते हैं मिनार। ठीक है गाइस। एक और टर्म अभी साइकिल के बाद डिस्कस करना था, पर एक और टर्म अपन पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टर्म्स अपन डिस्कस कर रहे हैं तो एक और टर्म पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज मीनोपॉज। नाउ गाइस, व्हाट इज मीनोपॉज? मीना का अपोजिट कर दो यार। मीना क्या था? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल। ठीक है, तो मीनोपॉज क्या होता है? एट एज ऑफ 50 menstruation और menstrual cycle stops in female। क्या होता है गाइस, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं अपन। ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, जब फीमेल की एज 50 या उससे ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये मेंस्ट्रुएशन अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। तो मीनोपॉज क्या होता है, एट द एज ऑफ 50 और मोर मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल। इस दोनों है मीनोपॉज और मिनार। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ था, तो मीनोपॉज और मिनार दो टर्म अपन ने डिस्कस की। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन देखी। ठीक है नहीं, अब अपन इसके सीरीज मतलब कह सकते हैं कि फेजेस देखते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल 4 फेजेस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल 4 फेजेस है। देयर आर मेनली 4 फेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल गाइस। 4 फेजेस है। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल, ये नाम ही लगा दो। इसने क्या बोला कि जो मेरा नाम है पहले फेज का नाम तो वही होगा। ठीक है, तो पहला फेज इसके नाम से मेंस्ट्रुअल फेज, पहला फेज इसके नाम से मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज गाइस, दूसरा फेज फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, दूसरा फेज फॉलिक्यूलर फेज, या अपन इसे बोल सकते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी कह सकते हैं टीचर मेनली पूछे कि फॉलिकुलर फेज, तो अपन बता देंगे। ऐसे पूछ रहे कि व्हाट इज प्रोलिफेरेटिव फेज, अपन कह सकते हैं कि बात सेम है, नाम अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो मैंने यहाँ पे और में इसे लिख लिया। जो थर्ड फेज है वो है, थर्ड फेज कौन सा है गाइस? थर्ड फेज ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। एंड फोर्थ वन इज लूटियल फेज। ठीक है गाइस, तो ये 4 फेज देखे अपन ने, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और लूटियल फेज। तो 4 फेज अपन ने देखे। 4 फेज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फॉलिकुलर, मेंस्ट्रुअल, ओव्यूलेटरी एंड लूटियल। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके नाम से, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, अपन यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं। फर्स्ट ए बी में इन चारों फेज को फर्स्ट में यहाँ पे करते जाते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है गाइस, तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, स्टार्ट करते हैं अपन
यूटेरस है। अब यूटेरस क्या है बता दिया था, यूटेरस की 3 वॉल भी अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब यूटेरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम 3 वॉल पढ़ी थी, एंडो मीसो पेरी, ठीक है। तो यूटेरस के अंदर वाली, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस ब्रेक हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस स्टार्ट एंड ब्लीडिंग, और कैसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस अकर यूटेरस ब्रेक एंड ब्लीडिंग अकर, ठीक है गाइस। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी वो टूटी, ठीक है, मतलब ब्रेक हो गई और उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है गाइस। ये था मेंस्ट्रुअल फेज। ये मेनली रहता है 1 to 4 डेज तक रहता, सॉरी 10 to 14 आवर्स तक रहता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। राइट हियर 10 to 14 आवर्स, 10 to 14 आवर्स, ठीक है गाइस। फॉलिकुलर फेज की बात है, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट में अपन इसमें जो हार्मोन यूज होता है वो लिखते जाएंगे, जो मतलब इस फेज में जो हार्मोन रिलीज होता है। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स है ना एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछते कि एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक्सप्लेन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कभी कभी टीचर ये क्वेश्चन भी डाल देते कि एक्सप्लेन द हार्मोनल सीक्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चे कंफ्यूज, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बच्चे तो क्या चारों फेज और इसके अंदर का एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ब्रेक, ब्लीडिंग स्टार्ट अगर ये सब लिख के आ जाते हैं, जबकि उन्होंने पूछा हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, जैसे अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो जो इवेंट फेजेस में हो रहा है वो लिखते जाएंगे और इसके आगे ब्रैकेट में अपन जो हार्मोन इस फेज में रिलीज हो रहा है वो लिखते जाते हैं, ठीक है गाइस। तो मेंस्ट्रुअल फेज में जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, और वी कैन नेमली राइट ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज हार्मोन भी देख लिया, फॉलिकुलर फेज को आई राइट इट हियर। नाउ स्टार्ट फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी तो इसमें टूटी तो इसमें वापस बन गई, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वापस बन गई, ठीक है, वापस बन गई। तो मैं यहाँ पे लिखूँ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस स्टार्ट फीमेल, ठीक है। इसमें मतलब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इसमें तो ब्रेक हुई थी और ब्लीडिंग चालू हो गई थी, इसमें क्या हुआ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वापस बन गई, ठीक है। अब इसमें जो फॉलिकल था अपने पास, फॉलिकल, ठीक है, इसमें जो फॉलिकल था, ठीक है, फॉलिकल वो डेवलप हो गया, प्राइमरी फॉलिकल जो था वो मैच्योर फॉलिकल में डेवलप हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं ब्लैक से लिखता हूँ, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू मैच्योर फॉलिकल, that is mature follicle, that is Graafian follicle, ठीक है गाइस, that is Graafian follicle। सो फॉलिकुलर फेज समझ में आया, ठीक है। सेम बात अगर उसके सामने अपन हार्मोन लिख लेंगे, हार्मोन इज FSH and LH। What is FSH and LH we discussed before। Ovulatory phase, so again I write it here, ठीक है। Now guys ovulatory phase, so ये तो अपन रफ कर लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन तो अपन ने देख ली थी, ठीक है गाइस। मतलब ये दो मीनोपॉज और मीनाक देख लिए। अब ओव्यूलेटरी फेज देखते हैं। ओव्यूलेटरी फेज से समझ में आ रहा है, ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन होगा यहाँ पे, मतलब ओव्यूलेशन होगा
ओव्यूलेशन होगा, ऑफ कोर्स होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओव्यूलेशन कितने टाइम तक होगा, विच इज 10 to 14 days, 14 hours, 10 to 14 hours, 10 to 14 hours, ठीक है गाइस। हाँ, फॉलिकुलर फेज में मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कराना भूल गया, ग्राफियन फॉलिकल गाइस, ग्राफियन फॉलिकल मेनली 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, मेनली 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल। तो अपन कह सकते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल, ठीक है गाइस। ओव्यूलेटरी फेज अपन ने देखा, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, 10 to 14 आवर्स में होता है। ओव्यूलेशन है तो याद भी नहीं रखो तो भी चलेगा, ओव्यूलेशन है तो कितने टाइम में होगा, 10 to 14 आवर्स में ही होगा, ऑब्वियसली बात है 10 to 14 आवर्स में ही होगा, ठीक है गाइस। अब आते हैं अपन लुटियल फेज में, अब आते हैं अपन लुटियल फेज में, ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट किया था मैच्योर फेज से, स्टार्ट किया था अपन ने मैच्योर फेज से, फॉलिकुलर फेज अपन ने देखा, ओव्यूलेटरी फेज देखा, अब अपन आते हैं लुटियल फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज समझ में तो आया ना, ओव्यूलेशन स्टार्ट अब सब पक्का समझ में आया ना, थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। ओव्यूलेशन स्टार्ट, ओव्यूलेशन तो पता है ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा, तो कैसे स्टार्ट होगा ओव्यूलेशन, कैसे स्टार्ट होगा, जब अपन ने फॉलिकुलर फेज में क्या देखा था, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बना था, मैच्योर फॉलिकल बन गया था फॉलिकुलर फेज में, ठीक है गाइस। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो जाएगा गाइस, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो जाएगा, मींस टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। तो उससे कारण क्या होगा, ओव्यूलेशन बन, ओव्यूलेशन चालू हो जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने 10 to 14 किया था, एक्चुअली 48 आवर्स, 48 आवर्स तक रहेगा, ठीक है गाइस। अब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा और ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई अपनी ओव्यूलेटरी फेज की बात। अगर उसकी बात कर ले हार्मोन की, तो LH, LH। तो गाइस समझ में आया हार्मोन क्यों लिख रहे हैं अपन, एक ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर भी LH तो करेगा ना, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर भी LH ही करेगा। एक्चुअली ओव्यूलेटरी फेज में होता क्या है, LH जो हार्मोन है वो हद से ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, LH हार्मोन हद से ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, तो जिससे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो जाता है, टूट जाता है और ओव्यूलेशन चालू हो जाता है। और हद से ज़्यादा LH हो जाता है, हद से ज़्यादा LH सीक्रेट होता है ना, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं, मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखता हूँ, LH सर्च, LH सर्च गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई डिटेल ऐसा आपका पेपर, अगर कोई ऐसा टीचर बना रहा है ना जिसको डिटेल स्टडी बहुत पसंद है, तो वो जरूर डालेगा LH सर्च, ठीक है, वो LH सर्च जरूर डालेगा। NCERT में है, NCERT में है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे तो अपन NCERT रीड करते नहीं है, ठीक है, NCERT रीड करते नहीं, अपन एग्जाम आइडिया, जो एग्जाम आइडिया हो गई या जो भी शॉर्ट गाइड्स हो गई उसमें से पढ़ लेते हैं, उसमें LH सर्च और ये सब अपन को इतना ध्यान रखता नहीं। LH सर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसे एक कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है, ये जो अभी मैं जितना भी लिख रहा हूँ ना, ये कॉपी में नोट करते जाओ। NCERT साथ में खोल के तो रखिए ना, NCERT साथ में खोल के रखो, ठीक है। तो उसके बाद क्या, NCERT रियली कह रहा हूँ भाई, ये होने के बाद ओवरऑल लिखने के बाद रिवीजन में आपको बहुत बेनिफिट करेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद NCERT आपको केवल जस्ट खोल के रीड ही मारनी है, उसके बाद आपको एक रीडिंग में परफेक्ट थोरोली समझ में आ जाए। तो गाइस ओव्यूलेशन देखा अपन ने, अब अपन आते हैं अपने लुटियल फेज पे, अब अपन आते हैं अपने लुटियल फेज पे, लुटियल फेज पे हार्मोन से स्टार्ट करते हैं। हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। इसमें क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू लुटियल, लुटियल कॉर्पस लुटियल, इसमें ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस लुटियल, कॉर्पस लुटियल, कॉर्पस लुटियल, ठीक है गाइस। ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस लुटियल, सिंपल सी एक ही लाइन है, ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लुटियल क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल है, वो रप्चर हुआ, ओव्यूलेशन तो हो गया, तो अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस लुटियल। एक डायग्राम दिया हुआ है NCERT में, वो 4 वाला, जिसमें ऊपर LH और FSH का दिया हुआ है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ दिया हुआ है, फिर नीचे पूरा एक ग्राफ के शेप में डायग्राम दिया हुआ है गाइस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरोन। हाँ, टाइम लिमिट भी लिख लेते हैं अपन, कब तक रहेगा ये कब तक रहेगा, 1 दिन, 1 डे, ये 1 दिन तक रहेगा, 1 दिन तक रहेगा। तो अपन ने यहाँ मैच्योर
साइकिल देगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल देगी, ठीक है गाइस। एक नोट लिखते हैं अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, एक नोट लिखते हैं गाइस अपन, एक नोट लिखते हैं अपन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी all the events of menstrual cycle stops. During pregnancy all events of menstrual cycle stop. ठीक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो here we discuss a detailed one menstrual cycle, ठीक है। उसके फेसेस देखे, मेंस्ट्रुअल फेस देखा, फॉलिकुलर फेस देखा, ओव्यूलेटरी फेस देखा और ल्यूटियल फेस देखा, ठीक है। इन सबके अपन ने हार्मोन्स देखे, ठीक है, और कह सकते हैं कि हार्मोन कंट्रोल देखा, ठीक है। इन सब में जो क्या क्या बातें हो रही थी वो अपन ने सारी बातें डिस्कस की। एक अपन ने टर्म्स देखे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दो टर्म्स देखे, मेनोपॉज देखा, ठीक है, और मेनार्क देखा, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल देखा, टर्म ग्राफियन फॉलिकल दैट इज मैच्योर फॉलिकल। एलएच सर्च क्या होता है मैंने वो बताया, एक्सिव सीक्रेशन ऑफ एलएच हार्मोन, ठीक है। कौन से फेज में होता है, ओव्यूलेटरी फेज में होता है, ठीक है। तो अपन ने पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से डिस्कस की गई, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से डिस्कस। तो अपन अब आगे चलते हैं। तो अगर आप चाहते हो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज आई रब इट। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, गाइस। अच्छे से फटाफट रब कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, फटाफट रब कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो गाइस एक बार क्विक रिबैक करते हैं, ठीक है, रिव्यू करते हैं एक बार फटाफट। स्टार्ट किया था अपन ने रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टार्ट किया था अपन ने, ठीक है। मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा, ठीक है। उसके बाद अपन ने अब रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रक्चर देख लिया, तो अंदर क्या हो रहा है वो तो देखना पड़ेगा ना। गैमीट फॉर्मेशन हो रहा था, मेल में अपन ने गैमीट फॉर्मेशन समझा, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में अपन ने गैमीट फॉर्मेशन देखा, oogenesis, गैमीट फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। पर फर्टिलाइजेशन से पहले अपन ने एक इंपॉर्टेंट साइकिल देख ली, इंपॉर्टेंट साइकिल डिस्कस कर ली, जो कि फीमेल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है और हर बार एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन का, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अपन ने गैमीट फॉर्मेशन देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया, एक साइकिल इंपॉर्टेंट देख ली, तो अब तो फर्टिलाइजेशन पे आ ही जाता है। उससे पहले भी, चलो फर्टिलाइजेशन आने से पहले भी अपन स्पर्म का डायग्राम समझ लेते हैं, स्पर्म का डायग्राम टेंथ में आपने पढ़ा होगा, फिर भी अपन एक फटाफट क्विक उसका समझ लेते हैं, स्पर्म का डायग्राम देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, अपन स्पर्म का डायग्राम देख रहे हैं फटाफट। अपन को स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं, अपन को अंदर के एंजाइम्स और लेबलिंग से मतलब है, ठीक है भाई। स्पर्म का डायग्राम देखते हैं, 3 पार्ट में होता है। पहला इसकी पूंछ, टेल, ये इसका मिडल पार्ट और ये इसका हेड, ये तो हुई आउटर लेबलिंग की बात की। अब अपन इसकी इनर लेबलिंग की बात करते हैं, ठीक है भाई। अब ये जो हेड पार्ट है, इसके आगे यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टोपी के जैसा, जिसे अपन बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलेंगे गाइस, एक्रोसोम, ठीक है। एक एक्रोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइस। न्यूक्लियस होता है ये बीच में, ऑब्वियसली बात है, साइटोप्लाज्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मिडल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्या एनर्जी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी थिंग है। मिडल पार्ट में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल करके 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, बाई चांस अगर कभी टर्म आ गया तो फिर आप बोलोगे कि मैंने पढ़ाया नहीं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। एक्चुअली इसमें पूछते नहीं है, क्लास 12 में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल के बारे में पूछते नहीं है गाइस, हायर स्टडी का है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, कल आप उठ के आप मुझे ये नहीं बोलोगे मैंने बताया नहीं कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल क्या होता है। तो मिडिल पार्ट में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अपन नाम याद रख लेते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है गाइस। ये दूसरा पार्ट, पहला पार्ट। मिडिल में ये दो पार्ट प्रेजेंट होता है गाइस, मिडिल में दो पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपन ने स्ट्रक्चर देखा, क्विक स्ट्रक्चर देखा अपन ने स्पर्म का, ठीक है। अब अपन बात आ जाती है अपनी फर्टिलाइजेशन। एक तरह से अच्छा हुआ गाइस, पता है एक तरह से अच्छा हुआ अपन ने स्पर्म का डायग्राम देख लिया ना यहाँ पे साइड में, अपने लिए और इजी हो जाएगा ओवरऑल फर्टिलाइजेशन को समझना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, एज वी ऑल नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। कौन सी गैमीट्स है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, नाम लिख लेते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट और फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवन, स्पर्म एंड ओवन। तो ये अपन ने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देखी, चलिए सही बात है। अब फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमीट हो गया, ठीक है, समझ गया, चलो। तो अब कुछ तो इतना पढ़ के हो गया कि चलो अपना तो फर्टिलाइजेशन हो गया। कभी सोचा है ये स्पर्म का अपन डायग्राम देख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, स्पर्म का डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं? कि अगर फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन समझनी होती तो डायग्राम का तो कोई यूज ही नहीं होता, ठीक है। ये इतना समझिए अपन ने क्या है और ये सब क्यों पढ़ा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन में ओवरी की वॉल को, स्पर्म ओवरी की वॉल को कैसे क्रॉस करता है, ठीक है। अपन ने पढ़ा था देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म, तो इतने सारे स्पर्म के एक साथ चले जाएंगे कि ओवरी की वॉल में, ठीक है। वो अब अपन सब देखते हैं, ठीक है। रफ लेबल डायग्राम से समझते हैं गाइस। लेट्स से ये ओवरी की वॉल है, ठीक है। मैं अगर आप डायग्राम के जरिए देखें तो मैं कुछ ऐसा टाइप बना देता हूँ यार, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, ये नहीं रफ से समझ लेते, इसका पाल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, चलिए कोई नहीं, बना देते और अच्छे से समझ में आए। आपस में अटैच है, कहीं ये गैप नहीं है, और अब अपने पास टाइम नहीं है तो इसलिए फटाफट अपन एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, वॉल हुई, एक इनसाइड वॉल भी बना लेते हैं। इनसाइड वॉल भी बना देते हैं, इनसाइड वॉल, ठीक है। इनसाइड लेयर बनाते हैं, इनसाइड लेयर बनाइए अपन ने। अब ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, ये ओवम है, ठीक है। अब ये ओवम, ये बाहर वाली जो ये मैंने सेल बनाया ना, ये है लेयर, कौन सी लेयर है, नाम है कोरोना, अभी चल ही रहा है, कोरोना का माहौल ही चल रहा है, तो ये लोग आराम से याद हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डोना पैल्यूटिना, डोना पैल्यूटिना, पैल्यूटिना। अब गए लेयर, ठीक है। अब समझते हैं मेन, ये ओवम का स्ट्रक्चर देखा था, ओवम का स्ट्रक्चर, फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर। अब देखना है फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर है अपने पास, है अपने पास मेल गैमीट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो अब पेनिस वेजिना में कॉइटस के जरिए एंटर हुआ, अपना पेनिस वेजिना में कॉइटस के जरिए एंटर हुआ, ठीक है गाइस। अब मिलियन, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर हो जाते हैं, ठीक है। एक बार में मिलियन ऑफ स्पर्म एंटर हो जाता है, ये सारे अंदर चले जाएंगे क्या, सारे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अपन ने यहाँ पे ये वाला डायग्राम अपन ने यहाँ पे बनाया, ठीक है।
ये वाला यहाँ पे बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, एक रफ डायग्राम अपन ने देखा। अब अपन देखा कि एक बार में देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटरिंग कोइटस। ठीक है, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म कोइटस वेजिना में एंटर करते हैं। ठीक है, तो अब मेन जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे समझने का। इसमें ऐसा है कि जो पहले आता ना वो पहले मतलब पार कर लेता है। अब एक बार में मिलियन स्पर्म ओवम के पास आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एक साथ में आ रहे हैं। पर अब जो स्पर्म पहले आएगा, जो स्पर्म की स्पीड फास्ट होगी, ठीक है, मोटिलिटी मूवमेंट फास्ट होगा, जो स्पर्म पहले आएगा, और ये वाली जो लेयर बनाई ना मैंने कोरोना रेडिएटर, ठीक है, ये वाली जो लेयर बनाई, जो स्पर्म का हेड पहले ही लेयर से टच हो गया, तो ये लेयर अब क्या करेगी, केवल इतने पार्ट को, इस स्पर्म को अंदर आने दे दिया। इस लेयर ने क्या किया, इस स्पर्म को अंदर आने दे दिया, और फिर ये जो बाकी स्पर्म आएंगे, लेयर वापस बंद हो गई। मतलब जो स्पर्म इस लेयर के पहले कांटेक्ट में आया, इसको वो स्पर्म तो अंदर आ गया, बाकी स्पर्म को इसने रिजेक्ट कर दिया। मतलब केवल एक स्पर्म अंदर आ पाया, बाकी के जितने भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स थे वो वेस्ट हो गए। ठीक है, अब ये कोरोना रेडिएटर का लेयर से अंदर आया। उसके बाद अपने पास लेयर आ जाती है डोना पेल्विसिडा। तो कोरोना रेडिएटर तो लेयर क्या थी कि सिंपल लेयर थी, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। स्पर्म ने इसको तो पार कर दिया। अब डोना पेल्विसिडा लेयर हार्ड लेयर है। ठीक है, डोना पेल्विसिडा लेयर हार्ड लेयर है, ये ऐसे ही पास होने देगी नहीं स्पर्म को। तो अब इसमें काम आता है स्पर्म का डायग्राम। इसलिए अपन ने क्या किया कि ओवम के पास स्पर्म का डायग्राम ही बना के रख दिया। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटर लेयर स्पर्म ने क्रॉस कर ली। अब बारी आती है ये डोना पेल्विसिडा लेयर। अब ये हार्ड लेयर है, और स्पर्म डायरेक्ट तो इसको इतनी एबिलिटी है नहीं कि क्रॉस कर पाए। अब इसमें काम आता है स्पर्म का ये कैप टोपी वाला स्ट्रक्चर, दैट इज एक्रोसोम। मैंने बताया था स्पर्म का ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऊपर के साइड, इसे एक्रोसोम बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो अब इसमें काम आएगा कि जैसे ही स्पर्म डोना पेल्विसिडा के लेयर में कांटेक्ट में आएगा, तो इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, इस लेयर के चारों तरफ एंजाइम सीक्रेट कर देगा, मतलब एंजाइम छोड़ देगा। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये क्या करेंगे, इस लेयर को पिघला देंगे, और स्पर्म ओवम के अंदर इजीली एंटर कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फ्यूजन हो जाएगा, अपना फर्टिलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने फर्टिलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट किया। ठीक है, अच्छे से समझा कि केवल एक स्पर्म एंटर कर पाएगा कोरोना रेडिएटर लेयर में। ठीक है, उसके बाद इस लेयर तो इजीली एंटर कर लिया। इसमें डोना पेल्विसिडा लेयर में एक्रोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ेगा, सीक्रेट करेगा, जो डोना पेल्विसिडा लेयर में एंटर स्पर्म इजीली एंटर कर पाएगा। तो गाइस अपन ने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया। अपन ने स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद अपन ने गैमीट का फॉर्मेशन देखा सेपरेटली मेल और फीमेल में। ठीक है, उसके बाद अपन ने फर्टिलाइजेशन भी कर लिया, मीन्स गैमीट का फ्यूजन भी हो गया। ठीक है गाइस, मतलब स्टेप वाइज चल रहा है। अपन स्ट्रक्चर देखा सबसे पहले, उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन देखा, ये गैमीट का फॉर्मेशन देख लिया, उनका फ्यूजन भी देख लिया अपन ने, फर्टिलाइजेशन भी देख लिया। अब आएगा इसका रिजल्ट की बारी, अपन ने यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट इन द सेंस एक टॉपिक बचा है प्रेगनेंसी, जो उसको मैं चाहूँ तो इस वीडियो में इंक्लूड कर सकता था। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, उस टॉपिक को अपन एक अलग ही वीडियो, सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो उसको अपन सेपरेट क्लास, सेपरेट वीडियो में ऐड करेंगे। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर सकते हो। मैं श्योर करता हूँ, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगा। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर देना, और क्लिक द बेल आइकन, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती जाए। ठीक है गाइस, टिल बाय।